Now, the latest Bollywood movie, Once Upon a Time in Mumbai, talks about the life of underworld don Haji Mastan and how he rose from gullies like these. Tracing his footsteps, Urmi Sahani goes back to his neighborhood, Nagpara in Mumbai, to find out what goes into the making of the Haji Mastan and the Dawood Ibrahims. Also to find out if the young there still harbour similar aspirations. आग और खून की दुनिया में ये पलते क्यों हैं? फूल से चेहरे निगाहों में खटकते क्यों हैं? जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसी राहों पे भला लोग फिर चलते क्यों हैं? Once upon a time, Nagpara was the muse for poets. But today it is known for being the hub of big names in the underworld. Haji Mastan, Dawood, Chota Shakil, Chota Rajan, the list goes on. What made these alleys once home to poets like Majroor Sultanpuri, Ali Sardar Jafri, Kaifi Azmi and Janisan Akhtar turn into breeding grounds for gangsters and criminals? The crime rate even today remains very high, and as expected, the employment rate equally low. I begin my quest at what was once Haji Mastan's turf, the docks close to Nagpara, where his smuggling routes and his escapades have been the inspiration for films like Diwar. इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। And recently, the Ajay Devgan starrer Once Upon a Time in Mumbai. मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। So what really happened once upon a time in Mumbai? This is Chamar Godi, now a well-guarded dog. This is where Haji Mastan started working as a coolie and later established contacts and started smuggling with small things like watches and jewelry pieces, and that's where the big story began. The story of crime that is retold here as a tale of gut and glory. I'm referred to Haji Saab, the man who lost his father in one of the first gang wars between Yusuf Patel and Haji Mastan, then known as Mastan Mirza. He narrates the episode with pride as though his father was not a bodyguard to a don, but a soldier who died in a war field. वालिद साहब ने बोले तुमने हमारे दोस्त को कैसा मारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट राउंड उन लोगों ने पिताजी के पेट के ऊपर रख के लास्ट फायर किया उन्होंने, तो वो गोली अंदर जाके फिर भी पिताजी ने छोड़े नहीं, उन लोग को ले जाके पायदुनी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को हैंड ओवर किए कि हाँ कि यूसुफ पटेल को इन्होंने मारे और ये आरोपी है। Haji Mastan was not just known as a smuggler in this area. He was the Robin Hood, Masiha, the friend of the poor. He started NGOs, even started a political party. Are these gangsters still revered as heroes here? Those like Haji Mastan are definitely seen as the brave who brought prosperity of sorts to a poor, discriminated against minority. I'm here with a bunch of boys who grew up listening to Bollywoodish tales of dons and gangsters. Let's try and get to know them better. इस पर्टिकुलर एरिया में से इतने सारे डॉन क्यों निकले, इसके बारे में किसी ने सोचा? क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान यही एरिया में इंसान हर जगह भाईगिरी नहीं करता। हाजी मस्तान इज नॉट डॉन बट ही इज अ डॉग्स का डॉन था। वो बेताज भाजता था, जो भी उसने कमाया लोगों में खर्च किया। बट ऐसा बनना अच्छी बात है कि उसने छुरी चाकू नहीं चलाया, उसने किसी को मारा नहीं, मर्डर नहीं किसका। आपको ये लाइन मिली तो उसने किया, हाँ। तुमने करे मतलब। हाँ। अभी उसको वो टाइम पे सब पब्लिक ने सपोर्ट करी ना, तो उसने वो किया। तो बेसिकली कि उस टाइम पे करीम लाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल के टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड शुरू हो गया और उसके बाद रुकेगा, ये रुकेगा क्या? आपकी जनरेशन पे अब रुकेगा? नहीं रुकेगा मैडम, मैंने बताया ना, जो अभी ये जनरेशन जो आ रही है ना, नहीं रुकेगा मैडम। जो हमारे छोटे भाई ना मैडम, वो लोग बोल पहचान में हम लोग को ले डालते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप का चाइल्डहुड, बचपन यहाँ पे कैसा रहा? जैसे क्यों? जरा सी हुआ नहीं, बस निकला चाकू,
सही में? चौपट निकलते सीधा यहाँ तो। गैंग वॉर तो होता ही रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बात पे तलवारें निकाल लेते हैं। आप लोगों ने बचपन से जब ये सब देखा है, आप लोग इनको एक हीरो की तरह देखते हैं? हमारे एरिया से आए दाऊद इब्राहिम जो हाजी मस्तान, क्या आपको नहीं लगता कि इन्होंने सोशल वर्क नहीं किया? सोशल वर्क नहीं किया, गरीबों को सिर्फ बड़े लोगों को सताया, गरीबों की इन्होंने पूरी हेल्प की है। मैम इसका भी पॉइंट कुछ कुछ हिसाब से ठीक है, लेकिन मैम जहाँ एजुकेशन का पॉइंट आता है, जैसे कि आप अगर यहाँ से एजुकेशन करके बाहर जैसे अमेरिका लंदन यहाँ पे आते तो यूएसए में तो आप देखते हैं मुसलमानों की क्या कदर हो रही है इनकी वजह से। ये जो इन लोग ने करे उसकी वजह से हम लोग को भी तो बहुत चीज़ भुगतना पड़ी। आज के टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत वेल एजुकेटेड पीपल्स हैं, लेकिन उनकी वजह से नाम खराब है हम लोगों का। अगर आप सबका नज़रिया देख रहे हैं तो मेरा भी एक नज़रिया है कि बहुत से टाइम पे 08, बॉम्बे 08, बॉम्बे 03, बॉम्बे 011, इन लोगों को मुसलमान लोग 09 ऑल्सो, इन लोगों को स्कूल के एडमिशन बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते, बैंक लोन नहीं देती। Was it just the Haji Mastans and Dauds who fueled the crime trend in Nagpara? Or was it the unemployment following the shutting of mills during the Great Bombay Textile Strike in 82? Or the Hindu-Muslim divide post-92 riots that turned into festering sores? Or was it simply the ghettoization that followed all of these? 93 blasts. और इस तरह मैं बम ब्लास्ट का सपोर्ट नहीं करता, ये तो गलत है, लेकिन जिस तरह मुसलमानों के साथ हुआ बिहार में, जिस तरह इंडिया में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को लोगों ने सेकंड शहरी उनको तस्लीम कर रहे हैं। 93 क्यों हुआ था, क्यों करना पड़ा था उन लोगों को? कुछ तो वजह होगी ना। हर जगह से दबाया गया, हर जगह से दबाया गया। अभी इसका किसी से हो जाए मैटर, किसी चीज़ पे झगड़ा, तो ये अकेले जाके सॉल्व नहीं कर सकते मैडम। उसके लिए भाई पटेल होना बहुत ज़रूरी है और चाहिए ही चाहिए। हम पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस का कुछ नहीं जाएगी मैम, 5,000 10,000 दे दिए सब छूट जाता है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है तैरना कॉलेज वाशी में BDS कर रहा है। वो जब फर्स्ट ईयर में उसने वहाँ एडमिशन लिया ना, तो उसके लिए रैगिंग हुई, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि आई एम फ्रॉम नागपाड़ा। उसको कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं बोला, वो चला गया चुपचाप वहाँ से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान का जो पावर है वो भाई पटेली या किसी दंगे फसाद से बढ़ता है। इंसान अपने आप को प्रूव कर सकता है बाय द वे ऑफ एजुकेशन। जैसे कि बड़े लोग हैं, अभी अंबानी भी है, वो कोई लड़ाई झगड़े से तो आगे बढ़ा नहीं है। अंबानी को भी एक फ़ोन आएगा मैडम, वो भी डर जाएगा मैडम बाहर से। यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? मैम ये एक सोने की चिड़िया थी मैम, आपको तो मालूम है। यहाँ से इतना पैसा ना यहाँ के लोग कि खाली निकालने वाला चाहिए यहाँ से पैसा। इतना पैसा यहाँ पे, दिमाग चाहिए यहाँ से कि किस तरीके से पैसा निकले। यहाँ पे एजुकेशन की बात आ जाती मैम, तो वहाँ पे ज़रूरी होता कि बाहर थोड़ा ऊंचा सोचने के लिए, थोड़ा कि बाहर जाके देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं। आपको भी बाहर जाना है कि रहना? क्योंकि यहाँ पे भले से कितने भी भाईगिरी है, मगर हमको ऐसा लगता है हम सेफ है, क्योंकि हम तक का कभी नहीं पहुँचते वो, इसीलिए लोकल जैसे हम लोगों में कभी दुश्मनी नहीं होती, आपस में दुश्मनी भले से होती है तो वो सॉल्व भी हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि बाहर की कम्युनिटी से थोड़ा मिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका परसेप्शन, क्योंकि आप बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको, अगर आप जैसे आपने बोला कि दैट इज बिकम अ प्रॉब्लम, उसको चेंज करने के लिए आपको दूसरी कम्युनिटी से मिलना जुलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको अपने आप को समझाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लगता है? फिर वही होगा जो 93 से पहले हुआ था, जिसकी वजह से 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। मतलब ये सब मुसलमानों पे जो जुल्म है उसको बंद करने के लिए उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। ये सब पहले फसाद ज़्यादातर हिंदुओं का ज़्यादा करते थे मुसलमानों, अब वो नहीं होता है। This breakdown of trust between Hindus and Muslims over the years kept pushing Muslim families around this area to move in and find security in numbers here. They huddled in small one-room houses, pushing the infrastructure to its limits. Today, the density of Muslim population here is almost 70,000 people per square kilometer. I make my way into a 100 square feet room, home to 3 families with kids and a grandfather. 11 people eat, sleep and bathe in this 100 square feet home. A family on the loft, one on the bed, one under the bed, and the grandfather gets the doorway. Fear is seen as the only way to fight fear. मैं चलती हूँ। क्या डर ही इसका आंसर है? इसके अलावा कुछ और चारा नहीं है ना हमारे पास मैम। थक गया मैम, कुछ कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं हमको, वो लोग एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है। आज भी जब हम लोग की ईद होती है ना मैम, हम लोग गली में टेप बजाते हैं। टेप बजाएंगे ना 10 बजे के बाद है ना, मतलब आ जाते पुलिस वाले, और वही पीछे गली में बजता है ना
12-12 1-1 बजे तक हम लोग देखते बचता और कोई वो नहीं, कोई नहीं मैडम। और यहाँ पे हम लोग जाके मतलब वो परमिशन भी लेते हैं, 50 रुपया भी देते हैं उन लोग को। जब विसर्जन देता है 4-4 बजे मैंने अपनी भीड़ रखी है, सब कुछ रहता है। ठीक है, आप फाइनल वर्ड इसके आपको लगता है कि जैसा भी है वैसा भी है, ये एरिया सेफ है, और कई लोगों को लगता है कि हम लोग को भी गैंगस्टर बनना चाहिए, उसे बनना चाहिए नहीं मैडम, मतलब उतना नाम पावर होना चाहिए। पावर होना चाहिए, या अपना ऐसा कोई दोस्त या अपने डैडी अंकल चाचा जिसको देख के सामने वाली पब्लिक हाँ भाई कुछ है। अगर पुलिस भी न्यूट्रल रहे ना तो किसको किसी चीज की ना भाई की जरूरत ना पटेल की जरूरत ना किसी चीज, अगर पुलिस न्यूट्रल रहे तो। And then there was the postscript even after the final word. कोई ऐसा हो कि बस रास्ते पर निकलूं तो बोले वाह मौसी मारा है। फुटबॉलर बन जाओ या कोई अच्छा हेल्पफुल, उससे लोगों की मदद करना। अभी तक का यही सोचे कि इंशाल्लाह कि अच्छे से MBA लंदन से या कहीं से अच्छी जगह से कर ले, उसके बाद में कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए और कुछ लोगों के लिए ऐसा करके जाए कि लोग याद करें कि हाँ ऐसा करके गया। अच्छी बिल्डिंग रहे, घर रहे अच्छे से, कि किसी के आगे मतलब हाथ ना फैलाना पड़े। Give us security, give us opportunity. A secular system we can trust. And watch us step beyond and dream.